Hello friends, welcome to Science Seekers platform. In the previous video of gene activation part 1, we have covered till the mechanism of signal 1, which is about the beta protein. Now we will cover about another protein in this video. Moreover, we have already covered about cell movements. So if you have not watched those videos, I have given you link in the description box. You can go there and catch those videos also. Let's start with the part 2, which is about next protein and about the signal 2. So we have studied in signal 1 that there is the formation of dorsal ventral endoderm axis, right? मतलब कि एंडोडर्मल सेल्स की फॉर्मेशन होती है और इसमें कौन सा प्रोटीन इन्वॉल्व था? बीटा कैटेनिन इन्वॉल्व था. जिस पार्ट में इन द ब्लास्टुला बीटा कैटेनिन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है वहाँ पर डॉर्सल एक्सिस बनती है एंडोडर्मल सेल्स की, एंड जहाँ पर बीटा कैटेनिन की मात्रा कम होती है ड्यू टू सम फैक्टर्स वहाँ पर वेंट्रल एक्सिस बनती है ऑफ एंडोडर्मल सेल्स. सो अब तक ब्लास्टुला में एंडोडर्मल सेल्स की फॉर्मेशन और एक्सोडर्मल सेल्स की फॉर्मेशन हो चुकी है, राइट? तो हमने बेसिकली यही पढ़ना है कि गैस्ट्रुलेशन इज़ द प्रोसेस अबाउट फॉर्मेशन ऑफ 3 germ layers दैट आर मेसोडर्म, एंडोडर्म एंड एक्सोडर्म. सो 2 germ layers की फॉर्मेशन हो गई है. नाउ वी विल स्टडी अबाउट हाउ मेसोडर्मल cells are formed. So it is about signal 2. So this is the signal 2 in which the new protein which is Darrer protein, DERRIERE, Darrer protein, which is secreted by newly formed endodermal cells. मतलब कि सिग्नल 1 में जो एंडोडर्मल सेल्स बने थे वो एक प्रोटीन सिक्रीट करेंगे विच इज़ Darrer protein, right? So this Darrer protein is involved in the formation of mesodermal cells in the dorsal and in the ventral part of the blastula, right? So first question which arises is that how this signal 2 works. So the Darrer protein or the transcription factor which is released by newly formed endodermal cells, right, it induces VG1 and VEGT, जिनके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है दैट दीज आर द 2 members ऑफ TFG बीटा फैमिली, सुपर फैमिली. इस फैमिली से बिलोंग करते हैं. बेसिकली दीज आर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स या फिर mRNA कह सकते हैं. सो ये 2 mRNA इंड्यूस हो जाते हैं विच इन्वॉल्व्स इन द फॉर्मेशन ऑफ मेसोडर्मल सेल्स. व्हाट इज़ हैपनिंग? जो हमारे एंडोडर्मल सेल्स थे उन्होंने डायरर प्रोटीन को एक्टिव किया. दिस डायरर प्रोटीन जो है फर्दर इट विल इंड्यूस दीज 2 mRNAs, राइट? सो वी हैव स्टडीड इन द ब्लास्टुला स्टेज दैट यहाँ पर अब तक ब्लास्टुला स्टेज में जो है वो एंडोडर्म फॉर्म हो चुकी है. और एंडोडर्म फॉर्म हुई थी किसकी वजह से? बीटा कैटेनिन की वजह से. सो हियर नाउ दिस इज़ द कंडीशन दैट लेट ब्लास्टुला स्टेज में वेंट्रली जो है वो VG1 लोकेटेड होगा एंड डॉर्सली जो है वो बीटा कैटेनिन लोकेटेड होगा. हाउ दिस डॉर्सली बीटा कैटेनिन जो है वो कैसे लोकेटेड है? नाउ सी दैट डॉर्सल साइड ऑफ ब्लास्टुला में बीटा कैटेनिन की मात्रा जो थी वो ज़्यादा थी, तभी वहाँ पर डॉर्सल एक्सिस बनती है mesodermal cells की, endodermal cells की, right? So we can say that dorsally located beta catenin, and on the other side where beta catenin the gradient of the beta catenin is low, it means that there is high gradient of VG1. So ventrally located VG1. I hope समझ आ गया होगा, ठीक है? अब क्या होगा that these 2 sides of the blastula, these will interact, या आपस में इंटरेक्ट करेंगी एंड फर्दर एक और प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करेंगी विच इज़ नोडल रिलेटेड प्रोटीन, और हम इसे ZNR1, ZNR2 और ZNR4
कहते हैं. So these are 3 nodal related proteins which interact with VG1 and beta catenin. अब देखो इंटरेक्शन हो रही है तो ऑब्वियसली इसका कोई ना कोई रिजल्ट, कोई ना कोई आउटपुट जो है वो भी आएगा. सो व्हाट विल हैपन, देयर विल बी 2 regions which will be formed. One will be with the high gradient of the interacted protein and other will be of low gradient of the interacted protein. And the interacted proteins are obviously VG1 and nodal related proteins or beta catenin या फिर nodal related proteins, right? So here with the help of diagram we can see that this is the direct proteins which induce further VG1 and EGT, ठीक है, in the ventral side, and on the dorsal side here is the beta catenin which is of red color, ठीक है. and this is the blastula stage and you can see कि blastocele cavity जो है वो अभी बन चुकी है. so अब we have that ventral and dorsal proteins with us. so यहाँ पर जो है ZNR proteins जो हैं वो already present रहते हैं, ठीक है. तो these ZNR proteins will interact with the proteins in the ventral and the dorsal side. so मैंने आपको बताया कि 2 तरह के regions जो हैं blastula में वो बन जाएंगे, ठीक है. पहला region जो बनेगा वो बनेगा high gradient of VG1 and nodal related protein, and the other region which is formed will be of low gradient of VG1 and nodal related protein, ठीक है. now see, जहाँ पर हाई ग्रेडियंट है इंटरैक्टेड प्रोटीन का वहाँ पर डॉर्सल मीजोडर्मल सेल्स बन जाएंगे, एंड ऑन द अदर साइड वेयर द ग्रेडियंट वाज लो ऑफ द इंटरैक्टेड प्रोटीन वहाँ पर वेंट्रल मीजोडर्मल सेल्स बन जाएंगे. ऐसे ही बिल्कुल जो है वो एंडोडर्मल सेल्स की फॉर्मेशन के वक्त भी हुआ था, जहाँ पर बीटा कैटेनिन की मात्रा ज़्यादा थी, जहाँ पर बीटा कैटेनिन का ग्रेडियंट वॉज हाई, उस रीजन ने डॉर्सल एक्सेस बना ली थी एंडोडर्मल सेल्स की, एंड द अदर रीजन जहाँ पर लो ग्रेडियंट था बीटा कैटेनिन का वहाँ पर जो है वो वेंट्रल एक्सेस बन गई थी एंडोडर्मल सेल्स की. सेम ऐसे ही जो है वो मेसोडर्मल सेल्स के लिए होगा, लेकिन जो प्रोटीन्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं वो डिफरेंट हैं. सो द फॉर्मेशन ऑफ दीज 3 जर्म लेयर्स और डॉर्सल एक्सेस, वेंट्रल एक्सेस बनना, सेल मूवमेंट्स होना, ये सब जो है दिस इज़ ऑल इज़ ओनली द गेम ऑफ प्रोटीन्स. सारे जो हैं वो प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं जो इंटरेक्ट करते हैं और डिफरेंट बॉडी पार्ट को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं. सो प्रोटीन्स की इम्पॉर्टेंस देखिए कि एक बॉडी में कितना इम्पॉर्टेंट होता है प्रोटीन. डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं और वो बहुत इनका एक मैकेनिज़्म है प्रॉपर जिसकी वजह से एक ह्यूमन बॉडी या फिर एक कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो बनता है, राइट. सो हेयर दिस इज़ जस्ट अ सम अप कि हमने अब तक क्या पढ़ा है. सो दिस ब्राउन पार्ट इज़ द एपिडर्मल सेल्स. नाउ एपिडर्मल सेल्स जो हैं वो कैसे बने हैं? एपिडर्मल सेल्स बने हैं हमारी एक्सोडर्म से, ठीक है. सो जो एक्सोडर्म है ये ब्राउन पार्ट इज़ द एक्सोडर्म. So this blue part, we know that this side is the ventral axis and this side is the dorsal axis. So blue part is obviously ventral mesoderm. This is pink part is ventral endoderm, right. पहले क्या बनती है? endoderm बनती है. After that mesoderm is formed, and here that orange part is dorsal mesoderm. और हम डॉर्सल मेसोडर्म को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी ऑर्गेनाइजर बोलते हैं. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू लर्न एंड रिमेंबर इट, ऑलवेज रिमेंबर इट, क्योंकि आगे जो हम प्रोसेस पढ़ेंगे अबाउट ऑर्गेनोजेनेसिस, न्यूरोलेशन, ये सब जो है इसमें
ये सेकेंडरी ऑर्गेनाइज़र और प्राइमरी ऑर्गेनाइज़र के बारे में आपको याद होगा अगर, तो आप प्रॉपरली उस प्रोसेस को याद कर पाएंगे, ठीक है। तो पहले क्या फॉर्म हुआ था, एंडोडर्म फॉर्म हुई थी, और ये डॉर्सल साइड की बात कर रहे हैं हम। सो डॉर्सल एंडोडर्म इज़ नोन एज प्राइमरी ऑर्गेनाइज़र। दिस इज़ द मेन ऑर्गेनाइज़र, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर सेंटर भी कहते हैं, राइट। एंड उसके बाद जो बनी है दैट इज़ मेसोडर्मल एक्सिस। कौन सी, डॉर्सल मेसोडर्मल एक्सिस। तो डॉर्सल मेसोडर्मल एक्सिस जो है उसे हम सेकेंडरी ऑर्गेनाइज़र भी कहते हैं। सो ये जो सेकेंडरी ऑर्गेनाइज़र है बेसिकली इसका फंक्शन होता है न्यूरॉन्स बनाना, फर्दर प्रोटीन्स सिक्रीट करना, या फिर मसल्स को बनाना, सो इस इंटरनल ऑर्गन्स को बनाना बेसिकली। तो इन सब फंक्शंस के कारण जो है वी आर सेइंग इट एज अ सेकेंडरी ऑर्गेनाइज़र। और प्राइमरी ऑर्गेनाइज़र क्यों कहते हैं एंडोडर्म को, क्योंकि यही पार्ट है जो गाइड कर रहा है कि किस प्रोटीन ने कहाँ पर हाई ग्रेडियंट शो करना है और कहाँ पर लो ग्रेडियंट शो करना है, ठीक है। फर्दर हम पढ़ेंगे कि ये प्राइमरी ऑर्गेनाइज़र यानी कि डॉर्सल एंडोडर्म जो है ये कुछ इनहिबिटर्स होते हैं वो भी सिक्रीट करता है, जिसकी वजह से जो ग्रेडियंट होता है प्रोटीन्स का वो मैनेज हो पाता है। एंड फर्दर नोटोकॉर्ड बनती है, न्यूरल ट्यूब बनती है, एपिडर्मल सेल्स जो हैं उनकी फॉर्मेशन होती है, एंड अल्टीमेटली अ फुल्ली फॉर्म्ड गैस्ट्रुला, मैच्योर गैस्ट्रुला इज फॉर्म्ड at the last stage of the gastrulation. So this is all about the game of protein. आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।